हिंदी फिल्में आजकल अच्छी नहीं कर रही, आपके हिसाब से हम कहाँ गलत जा रहे हैं? खैर छोड़ दो, रहने दो यार। कुछ उसका कोई जो नहीं हो सके पूर्ण काम उनको करता हूँ मैं प्रणाम। हम एक्टर लेबर होते हैं, हमें हायर किया जाता है, 12 घंटे काम करने हैं, लिखा रहता है प्रमोशन में 6 आना है इतने दिन। तो हमने ब्रिटेन वाले क्रिमिनल जस्टिस से प्रभावित होकर 2 इंडिया में बना, इससे प्रभावित होकर वो लोग बनाएंगे। इंडिया में कॉमेडी करना क्राइम है और क्रिमिनल्स को देखे तो थोड़ी कॉमेडी की जो फील आती है, तो आई थिंक वी नीड टू बैलेंस इट। This is Himesh and welcome to Pink Villa. Today we have with us the director and actor of Criminal Justice Season 3. Welcome to Pink Villa, guys. It's lovely having you here. Thank you. Thank you. My first question is to both of you actually. Season 1 to Season 3. Number one, how according to you has the series evolved on the scale front? And sir, आपके लिए आपका character कैसे evolved हुआ in 3 seasons? So I think on the scale front, I think both the writing has got more ambitious, both in the sense that this is the first original one. The first 2 are based on a British adaptation, Yeah. but this is the first time we're doing something original. So the ambition is increased. On the other hand, I think production values we're trying to increase. Most important on the creative side, I think Madhav Mishra keeps growing as a character. His relationships, the characters around him on the personal side as well as the professional cases, that has become more and more interesting as we go ahead and we learn more about him. So I think those have been the thing. And of course, the nice thing with a show like Criminal Justice is, of course, you retain central character like Madhav Mishra, Ratna, but you also get to bring in fresh actors each season. Last year we had Jishu, and last season we had so many wonderful actors. This time we've got Swastika, we've got Purab, young kids also. Shweta has done an amazing job. So it's very fun because a lot of the continuity is there, and each time there's something very fresh that you bring to the table. एंड सर, आपके हिसाब से आपका कैरेक्टर कैसे इवॉल्व हुआ है 3 सीजन में? क्योंकि पहले सीजन में आप अंडरडॉग थे, पर फिर जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ रही है आपके कैरेक्टर का भी एवोल्यूशन हुआ है, तो आप वो कैसे देखते हैं? वो तो राइटर करते हैं, मेरा कुछ उसमें का योगदान है नहीं। राइटर करते हैं। ऑफ कोर्स हमारे सेंस में भी रखना पड़ता है कि जब 2 केस जैसे भी 2 सीजन थे तो उसका अनुभव तो एड ऑन हो ही गया है माधव की ज़िंदगी में। तो मेरे लिए भी समझना आसान हो गया है कि इनका बिहेवियर क्या है, माधव मिश्रा कैसा है, वो भी ऑलरेडी 2 सीजन हो चुका है। बाकी तो बेसिकली काम राइटर्स का है, राइटिंग का है। करेक्ट। लेकिन सर, ये कैरेक्टर में आपको सबसे ज़्यादा क्या अट्रैक्ट करता है? लाइक ये कैरेक्टर का सबसे बड़ा यूएसपी क्या है आपके हिसाब से माधव मिश्रा का? उसका वे ऑफ हैंडलिंग, जैसे वो हैंडल करता है अपनी काम को, वो इंटरेस्टिंग है। उसका सार्केज्म बड़ा इंटरेस्टिंग है और सार्केस्टिक है, हर बात पे ताना मारते रहता है। So actually that was my next question to you. It's a courtroom thriller, but in this series, one of the USP of this franchise is the fact that there's a lot of humor to the character. How is it to get that for you as a director? So see, first of all, it has to be there from the writers. So I think writers and producers and us were all on the same page ki is genre mein, this is what makes this unique, is along with the courtroom drama, you really connect to Madhav through his sense of humor, and through that I think you just enjoy the show a lot more. So that was there on paper, and then it was up to us, Pankaj ji and myself on set. A lot of times we'd feel कि यहाँ एक मौका है, इस पेपर पे नहीं है। It could be a look, it could be just the way Pankaj ji takes a dialogue, anything. It could be the way you just change a line. कभी-कभी we added a line here, तो यहाँ एक मौका है, it will be entertaining. It was so I think it's just about that, having that confidence कि शो का कैरेक्टर नहीं बदल रहा है, बट हम उसको सिर्फ इन्हांस कर रहे हैं, उसमें एक making it more appealing, more accessible, at the same time keeping the seriousness of the case, all of that को ध्यान में रखते हुए. So it's a very enjoyable process to find that right balance, because वो theory सही है लेकिन इसको actually करना is not simple, and you can't do it if you don't have wonderful actors who understand that. इसको समझाना बहुत मुश्किल है। Actually वही मेरा अगला सवाल था सर। हम सोशल मीडिया पे जब देखते हैं काफी एक्टर्स हैं जिनकी एक्टिंग की तारीफ होती है उनके डायलॉग डिलीवरी से,
या द वे दे रिएक्ट इन सर्टेन सिचुएशन, बट जब आपकी बात आती है, काफी लोग कहते थे आपकी आईज एक्सप्रेस करती है, आपकी नेक एक्सप्रेस करती है, आपकी स्माइल एक्सप्रेस करती है, आप ये सब कमेंट्स को कैसे दिखते हैं? दिस अप्रोच, आप ये एक्टिंग के ये अप्रोच को आप कैसे डिफाइन करते हैं? उसी को एक्टिंग कहते हैं। हाँ, मैं क्या डिफाइन करूँ, वही तरीका बना है। क्योंकि आपने तो वो मीम्स भी देखे होंगे जो आपके हाँ, बहुत देखे हैं मीम्स। तो वो आई थिंक पहले ये इतने छोटे न्यूआंसेस नहीं होते थे और इस दौर में होते हैं, और चूंकि सोशल मीडिया में वो माइक्रोस्कोप हाँ वो पता नहीं एकदम वो लेंस लगा के बैठे रहते हैं। हाँ, तो एक छोटी से छोटी जेस्चर को आजकल लोग नोटिस कर लेते हैं, और पहले शायद छोटी चीजें नोटिस नहीं होती थी, इसलिए कई बार हमें सिनेमा में बहुत बड़ा बड़ा करना पड़ता था। हाँ, हमारे हिंदी सिनेमा के कोर्ट रूम देखो और अभी क्रिमिनल जस्टिस का कोर्ट रूम देखो तो बहुत अंतर है। बहुत रियल हो चुका है, लाइक जो पहले एक था लार्जर देन लाइफ, हालांकि इसमें हाँ इसमें थोड़ा हमने दोनों रखा है, ऐसा भी नहीं है कि थोड़ी है ड्रामेटिक भी है, लेकिन वो सेम टाइम उतना ही रियल भी है। करेक्ट। एंड सर, ट्रेलर में एक डायलॉग है where the dialogue is media trial के बारे में एक डायलॉग है, and that is an environment that happens even today. There is lot of media trial for everything. तो आप ये चीज को कैसे देखते हैं, स्पेशली इन टुडेज टाइम, बोथ ऑफ यू, जहाँ पे कितना कुछ मीडिया ट्रायल ही हो रहा है, रियलिटी कुछ और है, मीडिया कुछ और ही लिख रही है। हम लोग वही पेश करना चाह रहे हैं, वो हम उस पर कमेंट नहीं कर रहे, लेकिन दिखा रहे हैं कि वी नो दैट दिस इज हाउ थिंग्स आर। कोई भी हाई प्रोफाइल केस के दो केसेस चलते हैं, दो ट्रायल्स चलते हैं, तो हम लोग वही दिखा रहे हैं। वो एक एडिशनल इसमें पॉइंट ऑफ फोकस इस फैमिली पे क्या असर होता है, जो पूरा स्वास्थ्य का उनके बच्चे जो है उन पे क्या असर होता है जब एक तरफ एक ट्रायल चल रहा है, एक तरफ मीडिया अपने जजमेंट्स दे रही है। तो दैट इज फॉर द ऑडियंस के लिए एक सवाल है कि हाउ दे सी दिस, और मे बी मेंबर्स ऑफ द मीडिया टू थिंक अबाउट इंडिविजुअली। हर मीडिया का ऑर्गेनाइजेशन ऑब्वियसली उनको खबर चाहिए, उनको क्लिक्स चाहिए, जो भी है, उसका नेट इफेक्ट जो होता है वो होता है, बट नाउ that is that basically that dignity has gone away maybe in terms of reporting. and वो शायद वो वापस हम नहीं जा सकते हैं, तो ये टेक्नोलॉजी अभी है, लोगों के हाथों में फोन्स है, वो सब है, बट शायद हमें और मैच्योरिटी की जरूरत है टू हाउ टू हैंडल ऑल दिस। एंड सर, आप क्या कहना चाहेंगे जो मीडिया ट्रायल्स होते हैं, स्पेशली हमारी इंडस्ट्री को लेके सबसे ज्यादा होता है मीडिया ट्रायल, तो आप उसके बारे में आप क्या कहना? नहीं, ये तो पॉपुलर इंडस्ट्री है ना, और ये बहुत पीआर ड्रिवन इंडस्ट्री है। तो पहले तो वो शो में दिखाया ही है कि भाई कोई भी हो, हमें थोड़ा सेंसिटिव होना चाहिए किसी भी प्रकार के ट्रायल करने के पहले। तो बाकी तो हर किसी को अपने सोचने की आज़ादी है, अपने तरीके से सोचे और अपने तरीके से समझे कहानी को। इंटरनेट के युग में बहुत बड़ा अंतर्जाल है, कौन कहाँ से क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आता है। नहीं, वो तो आज के टाइम में वो बहुत बेसिकली एक कहावत है इंटरनेट पे काफी प्रोड्यूस है, एवरीवन इज अ क्रिटिक इन टुडेस टाइम, एवरीवन हैज एन ओपिनियन बेसिकली ऑन सोशल मीडिया एंड ये सब। करेक्ट। एंड सो आप दोनों के हिसाब से, लाइक यू सेड, दिस इज द फर्स्ट ऑफ द फ्रेंचाइजी व्हिच इज ओरिजिनल, सो व्हाट अकॉर्डिंग टू द टू ऑफ यू इज द बिगेस्ट यूएसपी, एंड ये आइडिया कहाँ से आया टू स्पिन एन ओरिजिनल इन दिस फ्रेंचाइजी? Biggest USP is sitting next to me. No, as Madhav Mishra, obviously, Pankaj ji playing that is become the. But I think for good drama shows, characters are central. So when you have a character and the role of a lawyer is again a great part, So वो एक मौका है actor के लिए भी एक मजेदार मौका भी है, and from the audience point of view, it becomes the identity, and it should, because एक लीगल शो का हमेशा वो लॉयर के साथ, जैसे डिटेक्टिव शो में आप वो डिटेक्टिव के साथ एसोसिएट करोगे, तो ऐसे जो आर्केटाइप्स हैं तो बहुत ही मजेदार हो सकते हैं। इस माध्यम के लिए मोर देन सिनेमा, मोर देन अदर मीडियम्स, इट्स मेड फॉर सीरीज, बिकॉज आप ऐसे थोड़े कॉम्प्लेक्स स्टोरीज भी बता सकते हैं जिसमें जैसे चाहे ह्यूमर का लेयर हो, ड्रामा का लेयर हो, इमोशन का, वो सब एक, बट द सेंटर टू इट इज दिस कैरेक्टर। सर, आपके हिसाब से क्या यूएसपी है ये सीजन का? ये सीजन का यूएसपी है कि अब हमने ब्रिटेन वाले क्रिमिनल जस्टिस से प्रभावित होकर 2 इंडिया में बना, इससे प्रभावित होकर वो लोग बनाएंगे तीसरा। तो ये रिवर्स कर रहा है कि 2 तुमने बनाया था, बेक हम बनाए। अच्छा, अब तुम लोग इसको जुवेनाइल जस्टिस पे तुम बना लो। तो ये वेस्ट की तरफ हमारा बीबीसी इंडिया का ऑफर है, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ भी। सर, अभी
क्योंकि यहाँ पे कोर्ट रूम सेटअप में हम बैठे हैं, यहाँ पे अभी हम एक छोटा सा सेगमेंट खेलेंगे, जहाँ पे पहला सेगमेंट है जहाँ पे आप दोनों के ऊपर कुछ फनी इल्जाम लगे होंगे जिसके आप जवाब देंगे, एंड दूसरा सेगमेंट है मैं जो कहूँगा सच कहूँगा, जिसमें कुछ स्टेटमेंट है जिसके बारे में आपसे कमेंट। तो पहले इल्जाम, पहला इल्जाम पंकज जी के लिए। पंकज जी, आप मिर्जापुर का अपडेट क्यों नहीं दे रहे हैं? मैं एक्टर हूँ, मैं प्लेटफॉर्म थोड़ी हूँ, वो काम प्लेटफॉर्म का है। बट वो बन रहा है तो प्लेटफॉर्म बताएगा ना, मैं तो अभिनेता अच्छा। हूँ, मैं लेबर हूँ। हम एक्टर लेबर होते हैं, हमें हायर किया जाता है, 12 घंटे काम करने हैं, लिखा रहता है प्रमोशन में 6 आना है इतने दिन, तो मालिक बताएंगे ना कब आएगा, हम तो लेबर्स हैं। रोहन, आप ब्लफ मास्टर 2 क्यों नहीं बना रहे हैं? कितनी बार मीडिया में इसका रिपोर्ट आया दैट ब्लफ मास्टर 2 इज बीइंग मेड, बट जैसे जो फिल्म के टाइटल में ही जवाब है आपके लिए ना, तो बनाएंगे तो वो ब्लफ खत्म हो जाएगा ना। अभी आप जब तक आपको पता ना हो कब बन रहा है बन नहीं रहा है, तो तब तो हम फिल्म के रूह से जस्टिस कर रहे थे, तो दैट इज द आंसर। बट यू प्लान टू मेक इट एवर, और विल यू बिलीव मी इफ आई टेल यू नाउ? इफ आई से नो यू शुड थिंक यस, इफ आई से यस यू शुड थिंक नो। ओके। पंकज जी, आपने अक्षय कुमार और शाहरुख खान के साथ काम किया है, बट अजय देवगन, सलमान खान के साथ आपने इतना काम नहीं किया हुआ है, तो वो कब होगा? छोटे रोल्स किए आपने उनके साथ अर्ली स्टेज ऑफ करियर में। ये तो वो उनसे पूछो ना, हमसे क्यों पूछ रहे हो? बट काफी फैंस को चाहिए कि जब भी कोई जब होना होगा हो जाएगा। अच्छा, हाँ, जीवन का स्क्रिप्ट तो ईश्वर के हाथों में है ना, कब क्या होगा हम क्या जानते हैं। अच्छा। रोहन, आपने काफी ओटीटी के लिए पिक्चरें बनाई है, बड़े पर्दे के लिए आप कब बनाएंगे? I think like Pankaj, you don't write the script for the timeline Yeah. of what you're doing, but I think वो ideas and scripts पे काम चल रहे हैं, but हमेशा OTT में इतना सारा interesting काम भी हो रहा है, तो वो भी एक you don't want to lose out on that, because जो फिल्म्स में नहीं होता है, सिटिंग हियर डूइंग अ थर्ड सीजन, वो भी एक इट्स सच अ प्लेजर टू बी एबल टू गो बैक। जैसे आई डिड द सेकंड सीजन, नाउ बैक फॉर द थर्ड, तो फ्रॉम द फर्स्ट डे इटसेल्फ यू कैन पिक अप एंड एक्सटेंड योर रिलेशनशिप, द वे यू कैन वर्क एंड बी इवन बेटर एट योर जॉब। तो OTT के ये बहुत इंटरेस्टिंग एडवांटेजेस है व्हिच आल्सो कीप मेकिंग दैट वर्क एक्साइटिंग। सो बट आई एम होपिंग देयर विल बी अ फिल्म वेरी सून, बट till it all comes together, and उस वक्त भी फिर मैं वो जवाब दूंगा, मैं भी मजदूर हूँ, मैं तो नहीं बता सकता उसके बारे में। ये टेम्पलेट बन जाएगा अभी। ओके, एंड आखिरी इंतजाम पंकज जी आप पे, आप इतने शांत कैसे रह सकते हैं हर समय हर मुकाम पर? बैटरी डिस्चार्ज रहती है, बैटरी डिस्चार्ज रहेगी, आदमी शांति रहे। नहीं, इसमें जीवन ये बुनावट ऐसी है, व्यक्तित्व तो ऐसा है कि वो उछल कूद के भी क्या मिलेगा। तो शांत, इस समय हर आदमी वो बेचैन है, परेशान है, उछल रहा है, तो शांति थोड़ी यूनिकनेस लगती है, लगता है क्या किया इस आदमी ने, कुछ नहीं किया है। बट इवन ऑन द सेट ही इज दिस काम, लाइक जब भी हाँ। इंटेंस सीन हो कुछ भी, बिकॉज कभी कभी वी हैव हर्ड स्टोरीज के एक्टर्स जब हाई पिच सीन होता है तो सेट पे भी हाई पिच रहते हैं। नहीं, आई थिंक उल्टा है। आई थिंक he and I are quite similar. I think हम दोनों पहचानते हैं कि you want to do good work, let there be the least tension, नहीं तो वो एक distraction हो जाता है। पता भी नहीं चलना चाहिए कि काम हो रहा है, लेकिन अच्छा काम हो रहा है। That's the for me. I mean, I think सबके अपने अपने तरीके हैं। नहीं, बिल्कुल, मैं भी इसी सहमत हूँ एकदम। ओके, द लास्ट सेगमेंट, जो कहूँगा सच कहूँगा। पहला जो स्टेटमेंट है, क्वेश्चन है, वो आप दोनों के लिए है। हिंदी फिल्में आजकल अच्छी नहीं कर रही, आपके हिसाब से हम कहाँ गलत जा रहे हैं? ऑडियंस को नहीं समझ रहे, सिंपल है। आई मीन ऑब्वियसली हम जो सोच रहे हैं वो जो सोच रहे हैं उसमें काफ़ी अंतर है। एंड पंकज जी आप? सेम आंसर। अच्छा, मतलब कंटेंट में ही हम गलत जा रहे हैं बेसिकली। हाँ, तो बिल्कुल सेल्फ असेसमेंट आकलन नहीं कर पा रहे हैं। ओके, कई सारे एक्टर्स, पंकज जी आपके लिए, कई सारे एक्टर्स ने कहा है कि काफ़ी सारी फिल्में उन्होंने सिर्फ पैसों के लिए की, स्क्रिप्ट के लिए नहीं। क्या आपने कभी ऐसा किया है? हाँ, 1-2 तो किया ही है। किया है। अब उनका नाम तो नहीं, नाम क्यों बताना। ओके, रोहन, लास्ट 10 इयर्स में मैंने काफ़ी फिल्में बनाने की ट्राई की है, बट वो स्क्रिप्ट्स रिजेक्ट हुई है फ्रॉम प्रोडक्शन हाउस। इज दैट ट्रू, फॉल्स? लाइक yeah, not just the last 10 years, but I think any person's career, you'll see
you end up seeing the things that are successful. जो नहीं होता है आप नहीं देखते हो. बास्केटबॉल प्लेयर माइकल जॉर्डन ने बहुत सारे गेम विनिंग शॉट्स लिए, बहुत सारे जो नहीं हुए वो तो याद नहीं रहते हैं. तो आई थिंक यू टेक इट एज पार्ट. हर रोज अपने को मेहनत करनी है एंड वो कहाँ तक पहुंचेंगे यू नेवर नो. वो कन्विक्शन के साथ करनी है बट बाकी आपके हाथ में नहीं है. बट द लॉट्स ऑफ टाइम्स एंड देयर माइट बी गुड रीजंस दे डिडंट गेट मेड, बट यू लर्न फ्रॉम ईच वन एंड you keep moving. I think that's the ultimate only thing you can do actually. I don't think there's any alternative. पंकज जी, क्या आप कभी राइटर या डायरेक्टर बनना चाहते हैं? हाँ, राइटर तो नहीं, हमको लिखना मुश्किल काम है. डायरेक्टर बन सकता हूँ, लेकिन अभी नहीं, बहुत पता नहीं कब. ओके. फॉर यू रोहन, वन फिल्म और वन सब्जेक्ट विच यू वांट टू मेक एंड यू विल मेक. I think the genre, not even the film, I think the genre जो I personally love is comedy. So I think there's such an opportunity because यहाँ काफ़ी कम बन रहा है. इसमें भी हमने थोड़े बहुत comic elements लाए हैं, but I would love to do more and more comedy. You know, crime and comedy. यहाँ इंडिया में कॉमेडी करना क्राइम है और क्रिमिनल्स को देखे तो थोड़ी कॉमेडी की जो फील आती है. तो आई थिंक वी नीड टू बैलेंस इट. नाउ वी डन क्रिमिनल जस्टिस एंड कॉमेडी वुड बी अ ग्रेट कॉम्बिनेशन. ओके, लास्ट वन फॉर बोथ ऑफ यू. पंकज जी, एक कैरेक्टर जो आप करना चाहते थे लेकिन आप कर नहीं पाए, जो आपको ऑफर हुआ बट आप कोई रीजन से नहीं कर पाए, मतलब वैसे. खैर छोड़ दो, रहने दो यार. कुछ उसका कोई जो नहीं हो सके पूर्ण काम उनको करता हूँ मैं प्रणाम. उनकी बात ही क्यों करना. ठीक है, ऑफर नहीं, कोई एक कैरेक्टर, कोई एक फिल्म जो आपने देखी और उसको देख के लगा काश ये कैरेक्टर मेरे पास. नहीं, वो नहीं लगता मुझे. वो अच्छा, जो मैंने किया हो गया. अच्छा, ओके. जो मेरे तकदीर में था वो होकर रहेगा. ठीक है. एंड रोहन, आई एम श्योर यू विल गिव द सेम आंसर नाउ, बट वन फिल्म और वन फिल्म एक्चुअली which you feel you could have directed better. Better? No, I don't think that. I mean, there's so many wonderful stories being told. But like Pankaj ji said, I mean, I don't ever watch films through that perspective. It's hard to think like that as a maker. You're just always interested in what you can do, and you enjoy what someone is doing, or you feel that it's not entirely up your alley, but you try to understand why someone has done it. But I don't think for me it's a thing of doing something. If it's like Pankaj ji said, अगर बन चुकी है तो it's done. I mean, I think as makers you always start thinking the day the film edit is locked, the master is done, then actually it's over for you. Yeah. You know, I think I watched Bluffmaster for the first time I think 15, 16 years after it released. Oh. Because my father also, I don't think उन्होंने शोले I think 20-25 साल पहली बार देखी. Okay. Because your connection is so different when you're working on something that is alive. It is, and once it's finished, you can't do anything to it. So better कि उसको छोड़ दे. That's the way I look at it. Okay, perfect. Thank you so much. It was lovely speaking to the both of you, and best of luck for Criminal. Thank you. थैंक यू दोस्त. हाय, मैं हूँ पंकज त्रिपाठी और आप हमें देख रहे हैं पिंक विला पे. हाय, मैं हूँ रोहन सिप्पी और आप हमें देख रहे हैं पिंक विला पे.